सही आ रही है? जी जी, समवॉट बेटर। जी Okay, बताइए। my patient, Mrs. Adila, 30 years of age. She's formerly uneducated and she's housewife. She's married to Mr. Ishtiaq, who is 30 years old and field worker by profession. They are married for last 8 years and it's first consensuous marriage of both the partners. She's resident of Gujarhan, that is आप 3 hours थोड़ा away from सा the जरा Index स्लोली Hospital. अपना जरा ये पेस रखें, थोड़ा सा स्लो रखें ताकि उसमें इंफॉर्मेशन वो करना जरा कैप्चर करना आसान हो। जी, मैरिड फॉर 3 Okay. इयर्स। Married for 8 years. It's first 8 consensuous इयर्स। marriage of both the partners. She's resident हम्म of Gujarhan, that is 3 hours away from the Index Hospital. And she is gravid of 4, para 2+1 with previous spontaneous vaginal deliveries, last child born 3 years back, and last abortion 1 year back. Her last menstrual period was on 15th of January 2021, and she was having regular cycle and sure of dates. That makes her expected date of delivery on 22nd of October 2021, and she is at 36 plus 6 weeks of gestation today. हम्म She is admitted to outpatient department of Index Hospital on 17th of September 2021, and today is her 15th day of admission. She was admitted with decreased hemoglobin and for further workup and management of her increased lack around the baby and breech presentation. My patient conceived spontaneously and it was a wanted planned pregnancy. Pregnancy was confirmed by urine pregnancy test when she was overdue 10 days done at home. She remained unbooked throughout her first trimester of the pregnancy. However, my patient denies any history of fever, flu, rash, jaundice, excessive nausea, vomiting, vaginal bleeding, discharge, or recurrent urinary tract infections. And there was no history of intake of folic acid एक मिनट बेटा जरा supplementation. होल्ड कीजिए, ये थोड़ा सा वॉल्यूम हम एडजस्ट कर लें। Yes, ma'am. एक मिनट में आपको बताती हूँ। जी, शुरू करें दोबारा। जी, तो नाउ शी कुछ ज़्यादा नहीं तेज़ हो क्या? Yes, जी ma'am. सना। आवाज आ रही है? हाँ, लेकिन Yes, अब ma'am. कुछ ज़्यादा ही आ रही है। 1 मिनट ज़रा हाँ, वॉल्यूम ज़्यादा ऊंचे हो एडजस्ट गए? कर लें हम। हाँ, थोड़ा-सा वॉल्यूम हमारे एंड पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट होगी। Yes, ma'am. अब ठीक है? 1 मिनट। अब बोलें ज़रा। Yes, ma'am. अब बोलें Yes, सना। yes, ma'am. Start करूं? जी करें। हाँ जी करें। मैम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से दोबारा स्टार्ट करूं? नहीं, बस जहाँ भी आपने ये बताया कि शी हैज बीन एडमिटेड विद डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एनीमिया, एंड उसके बाद आपने शायद रिप्रेजेंटेशन का बताया, आई थिंक सो। Yes, ma'am. With increased amount of liquor around the baby and breech presentation. ठीक है। It was a spon- जी it was a आगे spontaneous बोलते। wanted planned pregnancy. Pregnancy was confirmed by urine pregnancy test. When she got overdue 10 days, that was done at home. She remained unbooked throughout her first trimester, and there was no history of increased excessive nausea, vomiting, fever, flu, rash, vaginal bleeding, discharge, or recurrent urinary tract infection, and no history of intake of folic acid supplementation. She perceived her fetal movements in the 4th month of gestation first time, and they are normal up till now. She first booked herself at private clinic at the 4th month of gestation and having regular antenatal visits to that doctor. Her blood pressure, certain blood and urinary investigation, and ultrasound was done, and she was told about single intrauterine pregnancy corresponding to the 4th month of gestation. However, she cannot correlate it with any calendar Islamic month. Her hemoglobin was checked there, and she was told about a decreased hemoglobin that was up to the level of 6 gram per deciliter. She was not advised further workup and no dietary ये जो 6 modification. एक मिनट। जी ये जो 6 ग्राम डेसीलीटर वाली रिपोर्ट है, ये इसको एट हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन? हीमोग्लोबिन 6 ग्राम की जो थी, ये किस
टाइम की मैम ये कोट है। 4th मंथ ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, 4 मंथ पे। ओके, आगे चलें। She was not advised further investigation and no dietary modification was advised. However, she was given 5 doses of parental iron on alternate days in that private clinic. At that moment, my patient was having complaint of easy fatigability and generalized body weakness and no complaint of shortness of breath, palpitation, and no restriction of her household activities. Her diet was deficient in meat, poultry, and she gives no history of easy bruisability, bleeding from any other orifice, and use of blood thinning agents. No history of oral ulcers, heat and cold intolerance, excessive nausea, vomiting, food indigestion, chronic medical illness or fever with rigors and chills, and contact with TB. My patient gives history of a perineal itching, but no history of passage of worms in the stool, and gives history of pica in the form of mud. No history of any family history, no personal or family history of any blood transfusion previously or thalassemia. And she was given, she gives no history of she also gives history of decreased hemoglobin in her previous pregnancies and history of injectable irons in that pregnancy also. She was prescribed oral calcium and iron supplements, which she was taking. After that, she was taking with good compliance on different occasions. Her ultrasound anomaly scan was done at the 6th month of gestation from radiologist, and she was reassured about single alive fetus corresponding to her gestation, and placenta was normally located. However, she was told about increased amount of laca around the baby, and but no gross congenital anomaly was detected. Her oral glucose tolerance test was not performed. However, she was advised blood sugar fasting, and according to patient, it was normal. At that moment, she gives no history of increased thirst, hunger, urination, or and her perception of abdominal growth was also normal according to that. She also gives history of mild abdominal discomfort and increased urinary frequency, but no history of burning, micturition, and dysuria, and also no history of shortness of breath, indigestion, constipation, abdominal pain, vaginal bleeding, leaking discharge throughout her pregnancy. Although her blood sugar fasting was normal, but she was prescribed a tablet glucophage 2 times a day by that private doctor, and she was advised home monitoring of blood sugar levels and dietary modification in the form of sugar-free diet. And according to patient, she was well aware of use of glucomet, and she was checking her blood sugars at home occasionally, and they were within normal range. She first booked herself in the Index Hospital at the 8th month of gestation, and her hemoglobin was her blood and certain investigations were carried out, and ultrasound was also done. During that investigation, she was told about her hemoglobin was 8.5 gram per deciliter, and her blood sugar random was raised at that moment. And on ultrasound, she was told about increased amount of liquor and the breech presentation, and she was advised admission for further workup and management. And now patient admitted that during her hospital stay, her blood pressure is monitored, and it is normal. Her blood sugar random, her blood sugar levels are checked 6 times a day, and according to patient, they were within normal range. She was given a steroid cover for fetal lung maturity on 6 divided doses, and within hospital stay, her blood sugar monitoring showed normal levels. Even even her blood sugar levels were below the normal range. So her glucophage was stopped 2 days before. Regarding anemia, her and she was also given three parental iron infusions, and one RCC is transfused 4 days back. And she is she's provided fetal ketone chart daily, and her CTG monitoring is done daily, and she's advised to arrange one more unit of the blood. And for however, further plan of management and contraception is not being discussed with my patient. Regarding up her till now वन obstetrical ब्लड history. एक मिनट से ना, Yes, अब ma'am. तक एक ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज हो चुका है Yes, एंड ma'am. वन मोर इज इन पाइपलाइन, ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. ठीक है, चले। Regarding her past obstetrical history, she is mother of 2 daughters, one 7 and one 4 years old. Both conceived spontaneously, and she remained booked to the private clinic at the Gujahan, and she delivered at term with spontaneous vaginal deliveries and in private hospital with no antepartum, intrapartum, or postpartum complication. However, there was history of injectable irons in both her pregnancies, and there was no history of diabetes, hypertension, polyhydramnios, or PPH in any of the pregnancy. Both girls are alive and healthy, breastfed and vaccinated. Her last abortion was 1 year back,
It was the first time she conceived spontaneously, and but pregnancy ended up in the second month of gestation with spontaneous miscarriage, a spontaneous expulsion of product of conception. After that, she visited the doctor and she was told about complete expulsion of the product of conception. Hmm. Regarding her menstrual history, her age of menarche was 13 years, and since then she was having regular cycle with average flow and no history of dysmenorrhea, dysphoria, intermenstrual bleeding, or postcoital bleeding. Her pap smear was never taken, and couple practiced barrier method of contraception. Regarding her past medical and surgical history, that is not significant. Her family history is not significant for diabetes, hypertension, or ischemic heart disease, or any congenital anomalies. Her personal history, her sleep and appetite is good, and she has no bowel and bladder habit, and she's non-smoker, non-addict. She lives in a rented house with her husband and her mother-in-law, and her husband is the only breadwinner, and basic necessities of life are met with difficulty. Hmm. On examination, a young lady sitting comfortably in her bed, well oriented in time, place, and person, and having her height 5 feet 4 inch and weight 70 kilogram, and that makes her BMI 26 kilogram per meter square. And her vitals on blood pressure is 120 by 70 millimeter of mercury. Her pulse was 82 breaths per minute and 82 beats per minute, regular good volume. Her respiratory rate was 18 breaths per minute, and she was afebrile at the time of examination. Pallor was positive in her palmar creases and conjunctiva, and there was no clubbing, cyanosis, cholinicia, jaundice. Oral hygiene was good, and thyroid was not enlarged. All accessible lymph node was not palpable. On breast examination, Hmm. breast was bilateral, symmetrical, enlarged with the breast was bilateral, symmetrical with normal nipple and areola complex, and no lump was palpable in any of the four quadrant of breast and the axillary tail. On serious examination, apex which was felt left fifth intercostal space in the mid clavicular line, lateral to the mid clavicular line, and S1 and S2 were audible with no added sound. On respiratory system examination, normal vesicular breathing and no added sound. On abdominal examination, abdomen was protuberant with gravid uterus moving equally with the respiration. There were visible stria gravidarum, and there were no visible pulsation or scar marks. On palpation, abdomen is soft, non-tender, and symphysial fundal height was to 38 centimeter with lie longitudinal, and presenting part was a breech. And fetal estimated fetal weight was 2.5 to 3 kg, and LICA was subjectively increased, and fetal heart rate was 142 breaths per minute. And there was no Estimated fetal contractions at the weight time is of examination. estimated fetal weight is 2.5 to 3 kg आपने बताया. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. चलो summarize करो. Have you completed with the examination? Yes, ma'am. Okay. Now summarize the case. 30 years, Gravida 4, para 2 plus 1, previous spontaneous vaginal deliveries. Last child born 3 years back with decreased hemoglobin, polyhydramnios, and breech presentation. 3 parental iron and 1 RCC is transfused. On examination, she is mildly pale, symphysio fundal height 38 centimeter, longitudinal like breech presentation, liker clinically increased, estimated fetal weight 2.5 to 3 kg, and fetal heart rate 142 beats per minute. On available investigation, मैम वो इन्वेस्टिगेशन का फिर बाद में बताऊँ. अभी अभी हाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं अभी यहाँ तक ही आप करो. So, Yes. what is your diagnosis in this case? Basically, there are multiple risk factors in this patient. Yes, ma'am. But what is your bottom line diagnosis in this case? It's pregnancy with anemia and polyhydramnios Or and breech presentation. now, coming to the causes of it, as depicted on the history or examination पे आपने confirm किया. What do you think may be the reason of anemia in this case? Ma'am, as my patient is multigravida with previous two pregnancies, also history of injectable iron and decreased hemoglobin in that pregnancy, and she entered in pregnancy with already anemic state, because at 4th month of gestation she was having hemoglobin of 6 gram per deciliter. So most and she was having repeatedly injection of injectable iron, and now in this pregnancy, currently she's also transferred with 1 RCC. So most likely it seems to be iron deficiency anemia, that it is more common in our setup. Most prevalent.
But she developed this anemia right in the first pregnancy as well. Yes, ma'am. Hmm. Do you think still iron deficiency anemia can be a cause for this recurrent anemia? In her case, birth spacing is adequate. Last born child is 3 years old, though last abortion was 1 year back. But still, do you think that this is the reason behind this anemia, gross anemia? Ma'am, most likely this is the reason, as she belongs to low socioeconomic status, and her diet and diet was not sufficient, and she was in all previous three pregnancies. Although she had history of injectable irons, but she was don't give me any history of intake of oral supplements after that, or and she was never evaluated for her hemoglobin after that pregnancies. And the first Hmm. hemoglobin which was done in this pregnancy was 6 gram per deciliter. It seems like she entered in pregnancy with already depleted iron stores and already anemic state. Okay. Can she tell that what was the hemoglobin level in the first pregnancy? Have you asked for it? Yes, ma'am. I asked her it. She don't remember it exactly, but she was telling me that 9 gram almost. Just she gave me just one reading, and she was not well aware of the other readings. So, malnutrition, you think that malnutrition is one of the factors, Yes, as she ma'am. belongs to a low socioeconomic status class. Yes, What ma'am. else can be the reason? Ma'am, pica and hookworm infestation, worm infestations should Hmm. could be the reason of her ongoing loss. Hmm. And how pica can affect the iron status, iron levels in the body. Um, Ma'am, pica basically What is pica? with the pica is abnormal craving of food, Hmm. in like for non-elemental things like in the form of mud, ice, Hmm. or rice, and Hmm. also And the pica used by her is mud. ऐसा ही है ना? yes, yes, ma'am. So, And how basically, mud intake pica, will affect the iron status? ma'am, basically with pica, it chelates the iron that we take with our food, or it does not Hmm. lead to the absorption of the iron. So that decreases Hmm. the iron absorption, that lead to decrease iron availability. Okay, that is one thing. What else? When the pica is mud intake, then what else can be the mechanism of iron deficiency in this patient? Ma'am, maybe because of eating mud, she because the oro fecal route is the transmission of this worms infestation. So Hmm. Worm due to infestation and that, decreased iron absorption, these two can be caused by mud intake. ठीक yes, है? yes, ma'am. अच्छा, ये और इसके अलावा और भी कोई वजह हो सकती है इसमें? Ma'am, maybe she's not well evaluated for other reasons of anemia. So Hmm. she is, although she gives me history of her thalassemia test was done, and I will later tell on in the reports. But maybe she's not well evaluated for other reasons of anemia, Hmm. other types of anemia. No, but according to the history, some things may not be very apparent and evident. But what do you think, by your knowledge, that what else can be the reason for anemia in this case? Ma'am, apart from her dietary and pica and all that, I don't think Okay, so that चलो there's हम some other आगे reason, because चलते she हैं. was taking supplements regular. Yes, ma'am. जी. Yes, ma'am. अच्छा, चलो इसको इसको हम यहीं पे स्टॉप करके आगे चलते हैं. अब ये Yes, मुझे ma'am. बताइए कि नाउ polyhydramnios excessive liquor has been diagnosed since 6 months onward. Yes, Okay. ma'am. And blood sugar levels repeatedly in the second trimester and the start of the third trimester came out to be normal within normal limits. So, इसमें what do you Uh, think that was the reason for excessive liquor right from the start of second trimester? Ma'am, the causes of early polyhydramnios mainly include the congenital anomalies or any fetal abnormality.
So the patient gives history of anomaly scan as it was done by radiologist. Most likely these congenital anomalies are ruled out. So the other most common reason is diabetes, and according to patient, that her diabetes was also her blood sugar fasting was although normal, and she was given a tablet glucophage. But later on in her later pregnancy, it was checked and her blood sugar levels were normal. So the diabetes is not most likely related to this polyhydramnios. It's ruled out, and other causes could be idiopathic, and that is most likely seems to be in this case. Do you think that it has some relation with the severe anemia in the first trimester at 4 months? इसको हम Ma'am, थोड़ा normally, correlate कर सकते हैं? ma'am, Correlate कैसे normally, कर सकते हैं? ma'am, normally anemia in the mother is not usually correlated with the polyhydramnios, but if a baby is affected with anemia, mostly in RH incompatible women, or so in that case, that could be the reason for her anemia that can lead to polyhydramnios later on due to congestion. ठीक है. तो इसमें usually this effect is not seen in the fetus when the mother is having severe anemia. तो fetal effects ये नहीं होते. Polyhydramnios को हम उसके साथ correlate नहीं कर सकते. So it is some independent pathology. और ये जरूरी नहीं होता कि polyhydramnios के पीछे कोई वजह ही हो. In 50% it may be idiopathic. तो जब आपको कोई रीजन ना पता चले, अब देखो इसमें शी वाज नॉट प्रॉपरली इवैल्यूएटेड फॉर द डायबिटिक स्टेटस. अब खाली फास्टिंग और रैंडम की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इज लो, तो इस वजह से इसमें जो टेस्ट एक्चुअली होना चाहिए था वो नहीं हुआ. सो यू कैन नॉट से कॉन्फिडेंटली या डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई इम्पेयर्ड जो है उसमें कोई हाइपरग्लाइसीमिया था या नहीं था. सो दैट रिमेन्स अनकंक्लूडेड, वो वाली जो कंपोनेंट है इसकी पैथोलॉजी का. बट नाउ व्हेन शी वाज एडमिटेड एट 8 months, her blood sugar level was found to be raised. Though initially she was started with the glucophage और डाइट कंट्रोल पे उसको शुरू कर दिया गया, बट स्टिल इट फेल्ड टू कंट्रोल द पॉलीहाइड्रामियोस. और इतना अर्ली जब पॉलीहाइड्रामियोस होता है तो इसके अमूमन ये इसके पीछे इडियोपैथिक होना या इवन अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी हो या अगर हाइपरग्लाइसीमिया भी हो, तो पॉलीहाइड्रामियोस बहुत इनिशियल स्टेजेस पे ऐसे नहीं हो जाता. तो इसलिए ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग चीज है. बट वी डोंट नो एक्चुअली कि व्हाट वाज द एक्चुअल रिपोर्ट ऑन अल्ट्रासाउंड जो पेशेंट को बताई गई कि ये इसमें पॉलीहाइड्रामियोस था या नहीं था, कि एक्चुअल वो अमाउंट कितनी थी. सो अगेन वी कैन नॉट गिव आवर ओपिनियन एंड कमेंट डेफिनेटली ऑन दैट रिपोर्ट. वो पेशेंट की अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक था. बट नाउ आफ्टर एग्जामिनिंग दिस पेशेंट, you know it very clearly that the patient is having polyhydramnios. And how you check for the excessive amount of liquor, how you can say that the liquor was excessive on abdominal examination? Ma'am, it was not very much tense. Abdomen was not very much tense, but when I palpated the fetal parts, they were easily palpable, and they were, as head was 5/5 palpable, so easily palatable. So that Which presentation that thi? yes, ma'am. No, ma'am. Presenting part was palatable, breach tha. So that lead me the inference that there is liquor is not adequate. It was more than average. Although fetal parts were palpable, but it was not very इसमें much tense, so I cannot say बेसिकली अगर आप that. इस तरह से ये कहो ना, क्योंकि देखो 30 नाउ शी इज एट 37 वीक्स ऑलमोस्ट. 37 वीक्स पे लाइकर का इतना भी होना उसको मोर देन एवरेज जो है वो एक उसकी कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे लाइकर स्टार्ट टू डिक्रीज, क्योंकि मैक्सिमम लाइकर की अमाउंट होती है फ्रॉम 30 वीक्स ऑनवर्ड, मैक्सिमम एट 32 वीक्स. तो इसमें जो है अब आपने लाइकर एक्सेसिव का बताया बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स के फीटल पार्ट्स वर इजीली पैल्पेबल, वो तो नॉर्मल एडिक्वेट लाइकर के साथ भी इजीली पैल्पेबल होते हैं. तो यू कैन से दैट फीटल पार्ट्स वर इजीली बिलॉटेबल फ्रॉम साइड टू साइड. अमूमन ये बिलॉटेबल नहीं होते एट 37 वीक्स. दीज आर इजीली पैल्पेबल बट नॉट बिलॉटेबल.
ठीक है, आप इनको आसानी से इधर उधर कर सकते हो। अब हाउ यू कैन एस्टिमेट द फीटल वेट विद प्रिसीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाइकर? Yes, ma'am, I cannot exactly comment, but as Liker was not very much increased, I can easily grip the fetal parts, and her abdomen was very lax. So I can easily grip the parts of fetus in my hands, and I can easily assess that. सो इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वरना अगर एक्सेसिव लाइकर हो तो उसमें अमूमन फीटल वेट एस्टिमेशन में एरर ज्यादा होते हैं, जो ऑलरेडी 35% होते हैं ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इवन इन अ नॉर्मल लाइकर अमाउंट जब जिनमें पेशेंट में हो, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे इतना एरर होता है। क्योंकि अब जो फीटल वेट आपने मुझे बताया वो 2.5 to 3 kg है, विच इज एडिक्वेट फॉर दिस टाइम, फॉर दिस जेस्टेशन। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं है कि ब्लड शुगर लेवल रेज्ड, which you can say may be a cause for excessive liquor now at this stage, लेकिन fetal weight उसका नॉर्मल है, एवरेज है फॉर दैट जेस्टेशन। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग वो नहीं है। मैम एक्चुअली इसका ब्लड शुगर लेवल इस तरह से रेज नहीं थे. व्हेन शी केम इन द ओपीडी देन दे एडवाइज सर्टेन रूटीन इन्वेस्टिगेशन इन व्हिच शी वाज एडवाइज्ड ब्लड शुगर रैंडम and sensitivity and specificity is very low. So at that random report she was admitted. So during hospital admission, even Dextracor was given in sliding scale. I checked her 4-5 days record, and all levels were within normal range. And even she was having even after hypoglycemia. steroid cover, even after Yes, steroid ma'am. cover. Yes, So a yes, single ma'am. reading may And be, single reading may be wrong. ठीक है, वो अगर एक ye- लेवल रेस्ट आया और बाकी सारे लेवल ठीक आ गए तो प्रोबेबली yes, दैट ma'am. Most सिंगल likely. रीडिंग में भी wrong. ठीक है, so still we cannot link increased amount of liquor to any hyperglycemia throughout her pregnancy. ना Yes, ये ma'am. पहले था और ना ये अब इस टाइम पे है, तो इसको हम उसकी कॉज के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देयर मे बी सम अदर कॉजेज और एट लीस्ट यू कैन से दैट इट इज इडियोपैथिक। अब इस पेशेंट में जो हीमोग्लोबिन इसकी थी 6, शी एंटर्ड इनटू प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 4 months है, वो इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड ही तकरीबन हो जाता है। तो 6 ग्राम इसकी उस वक्त थी, 5 आयरन इसको लगे और अब इसको 3 आयरन मजीद लगे और एक ब्लड लगा और एक ब्लड इसका पाइपलाइन में है। क्योंकि बाद दफा ऐसे होता है कि ये सारी चीजें जो पेशेंट को ट्रीटमेंट पहले मिली होती है या इन्वेस्टिगेशन मिली होती है, यू आर आस्क्ड टू गिव ओपिनियन, योर ओन ओपिनियन on that management plan or the evaluation plans. ठीक है, तो इसमें आपका ख्याल है कि ये सब कुछ इसके साथ ठीक हुआ? Ma'am, at 6 gram of hemoglobin, she was properly evaluated for that. Her thalassemia, like eleptophoresis, must be done. Although her peripheral smear was showing a macroscopic hypochromic picture, but her MCHC was normal. So, तो यही so वो she. चीज है जो मैं आपसे आयरन की कॉजेस में पूछ रही थी बार बार कि व्हाट एल्स कैन बी द रीजन, because up till now you can just say based on your clinical history कि ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन हीमोग्लोबिनोपैथी इज वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट कॉजेस। तो इसलिए इसमें जो सिलेक्टिव स्क्रीनिंग भी हम करते हैं, स्पेशली इन द पेशेंट्स हु एंटर्ड द फर्स्ट प्रेगनेंसी विद लो हीमोग्लोबिन स्टेटस, चाहे उसके पीछे मेल न्यूट्रिशन का फैक्टर हमें नजर भी आ रहा हो, तो इसमें इसकी इवैल्यूएशन किसी भी प्रेगनेंसी में उस तरीके से नहीं हुई, बट एट लीस्ट यू शुड मेंशन इट एज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो आपको एनीमिया की जब आपसे कॉजेस पूछी जाए तो हीमोग्लोबिनोपैथी भी आपने इसमें बतानी है, क्योंकि दिस इज रिकरेंट एनीमिया एंड वी डोंट नो द इंटर प्रेगनेंसी स्टेटस, क्योंकि उसमें शायद इसने कभी करवाई ही नहीं होगी हीमोग्लोबिन के, उसमें इसकी कितनी होती है, लेकिन ये हमें पता है कि हर प्रेगनेंसी में इसको एनीमिया हुआ, जिसके लिए इसकी इवैल्यूएशन अभी तक नहीं हो सकी। सो दिस विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेस। तो अब इसमें इसको इतने आयरन भी लग गए, कम से कम 8 आयरन तो इसको लग गए हैं अब तक बगैर किसी इवैल्यूएशन के। अब आपके ख्याल में इसकी इवैल्यूएशन की तरफ हम अब आते हैं कि अब इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है।
Ma'am, regarding her basic health profile, I need her blood group with RH factor that was AB positive, her complete blood Hmm. count with date, pre-transfusion and post-transfusion. Her pre-transfusion HB was 8.5 gram per deciliter, and her post-transfusion Hmm. HB on 28th of September, it was showing hemoglobin in 9.5 gram per deciliter. Her total 9.5. leukocyte count was 5 gram 9.5. per. And this was after 3 transfusions and after three iron infusions and 1 blood transfusion. ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इससे पहले जब इसका एडमिशन हुआ था वो किस डेट को हुआ था? मैम 17th of September पे हुआ था. 17th of September को हुआ और उसके बाद तकरीबन within a period of 2 weeks she received 3 iron infusions and 1 blood. Yes, ma'am. Do you think this is enough time period to reassess the hemoglobin concentration in this patient? Just 1 gram raise है, जबकि हमने 3 आयरन भी लगा दिए और 1 ब्लड भी लगा दिया. Normally it takes 3 weeks almost to build up the hemoglobin, but 2 as to she 3 was weeks transfused तकरीबन with लगता ही है. 2 to 3 weeks हम ऑन एवरेज लेते हैं कि इसमें इतना टाइम पीरियड लग जाता है. लेकिन जस्ट 1 ग्राम रेस है, इस पे आप कोई कमेंट देना चाहेंगी? After 3 iron infusions and 1 blood transfusion. ma'am, maybe this is not the reason of her iron deficiency anemia is purely not the reason of her anemia. So that's why her injectable iron are not enough to raise her hemoglobin level. So when she was transfused with 1 RCC, so then her hemoglobin was raised to 1 gram per deciliter. ठीक है. So how you will evaluate her further? If this is not the reason, because so far we assume that the patient is having iron deficiency anemia. हमने अभी तक ये assume करके उसकी सारी चीजों को हमने देखा है. So how we should evaluate her further? Ma'am, I need her peripheral smear and her RBC indices. Her mean corpuscular volume was 61. Her mean corpuscular hemoglobin was 19, and her mean corpuscular hemoglobin concentration was 32. So mean corpuscular volume was grossly reduced. Yes, ठीक है. Mean corpuscular hemoglobin concentration is normal. ठीक है yes, ना? ma'am. और पेरिफेरल स्मीयर की क्या रिपोर्ट थी? मैम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ही वो शो कर रहा था. ठीक है. तो ये सारी चीजें इन एब्सेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी किस और कंडीशन में हो सकती हैं? Ma'am, that could be due to thalassemia. It is beta thalassemia most likely. It is prevalent in our situation. ठीक है. तो इसके लिए So आप we क्या can. करेंगे? स्टिल द रीजन इज नॉट कंक्लूडेड. इसमें अभी तक हमें रीजन जो है अभी तक की ट्रीटमेंट इनफेक्टिव साबित हुई और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हैं, इन्वेस्टिगेशन हमें कोई चीज प्रूव नहीं कर. Yes, ma'am. And I need further to confirm her type of anemia. I need her serum ferritin and her HB electrophoresis report. Her serum ferritin was 29, and that was at the date of 23rd of September. Most likely before her यानी जब तक इसको iron. तीन आयरन मिल चुके थे, सीरम फेरिटिन वाज स्टिल 29. 29, and ma'am, it was before her blood transfusion, and her HB electrophoresis बट was also आफ्टर done. It बट was आफ्टर विनोफारिन इंफ्यूजन, आफ्टर विनोफारिन yes, इंफ्यूजन तो था ना इसकी ma'am. रिपोर्ट. After one vino for infant, 2 infant was given after that, ठीक है, चलो. and और her इसके HB अलावा हमें क्या electrophoresis टेस्ट report. कराना है? Ma'am, I need इलेक्ट्रोफोरेसिस her अब इस HB. वक्त करवाओगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस अब करवाओगे? Ma'am, it was no, ma'am. It was done before her transfusion. Actually, we अच्छा. don't normally do it after the. So the report was also on 23rd of. It was before her transfusion, and it was normal. And I also need her stool over and to cult blood, but it was not done. ठीक है. Now what else can be the reason? अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो भी नॉर्मल आ गई. अभी तक की जो कंक्लूजन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ही बन रही है बेस्ड ऑन सीरम फेरिटिन एंड पेरिफेरल स्मीयर एंड आरबीसी सिंथेसिस. अगरचे एमसीआईसी इसमें नॉर्मल है. तो बहुत Yes, सारी ma'am. जो है वो मिसमैच्ड इन रिपोर्ट्स हैं इसकी. और इसमें हम फिर क्या कराएंगे अब?
और क्या Ma'am, कराएंगे? it could be, ma'am, it could be alpha thalassemia, but हम्म, because in अच्छा alpha तो फिर thalassemia, this MCC is also normal as HB lactophoresis हाँ, is ruled out, but alpha thalassemia is not ruled out on HB lactophoresis report. ठीक है, इलेक्ट्रोफ्रेसिस उसमें नॉर्मल आ सकती है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन दिस केस। और Other causes could be anemia of the chronic disease, but my patient doesn't give me any history of malaria or any chronic disease like chronic kidney or liver disease. Or other ठीक है, disease could be sideroblastic anemia, but her हम्म, peripheral picture was not showing any. मतलब पेरिफेरल पिक्चर से आपको पता चल जाता है। Yes, ma'am, that और was not showing the. और 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 इसके And अलावा ma'am, it could be some bone marrow. बोन मैरो No. सप्रेशन आपकी बात कर रहे हो? Ma'am, but there बोन is no मैरो risk factor for सप्रेशन की that. बात कर रहे She was not taking any drug like antifolate or हो? any other medication for that. ठीक है, तो वो So क्या maybe two करेंगी, ये जो pathologies ड्रग्स can हैं ये क्या coexist. करेंगी? तो Ma'am, basically हाउ this, these drugs can affect the bone marrow functioning? ma'am, they causes bone marrow suppression Separation, because ठीक they're है। antifolates, so they can hamper the DNA ओके, synthesis. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? Ma'am, it other type of anemia like megaloblastic anemia, folate वो deficiency तो नहीं anemia है can ना, वो co. तो इसकी पेरिफेरल स्मेयर और ये सब चीजें जो हैं वो उसकी तरफ नहीं जाती। Yes, ma'am. हम्म, Ma'am, sometimes they और coexist, so the picture is mostly non-conclusive. हम्म, ठीक है, इसमें वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकती है, बट हीमोलिटिक एनीमिया बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी वाला स्टेटस नहीं होता, क्योंकि इसमें आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन, रिलीजिंग द आयरन मॉलिक्यूल एंड सो एडिंग इट अप टू द स्टोर्स एंड द सीरम लेवल। तो इसलिए इसमें और दूसरी बात ये कि इसमें टू रूल आउट हेमोलिटिक एनीमियाज आप रेटिक काउंट और एलडीएच तो Yes, ma'am. करवा सकते हो, बट Yes, स्टिल ma'am. रेटिक, हाँ, इन Yes, ma'am. I रेटिक was काउंट जो keeping है, it in my plan that हाँ, for hemolytic, although I didn't speak it because her seroferritin was also not very much raised, and on blood हाँ, smear there was no picture of any hemolysis was not seen there. So, but I ठीक है, keep it in my investigation the LDH and retics count. ठीक है, बट इफ यू आर आस्क्ड फॉर एनी अदर रीजन तो आप ये कह सकते हो कि अनदर रीजन कैन बी दिस, बट इन व्यू ऑफ द सीरम Hmm. फेरिटिन लेवल एंड आरबीसीज इंडिसेस इट डज नॉट फिट इन द पिक्चर। ठीक है, तो रेटिक काउंट बेसिकली दो चीजों को इंडिकेट करेगा, हेमोलिसिस को भी और हीमोपायोसिस को भी, जो इस वक्त हो Yes. सकती है इसको, क्योंकि इसने आयरन काफी लिया हुआ है। सो इन दैट केस व्हेन यू आर हैव अ प्रिवेलिंग सिचुएशन, अगर ये सीरम फेरिटिन फर्ज किया इसका ठीक होता, बाकी सारी चीजें यही होती, तो उस सूरत में रेटिक काउंट की सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो इस केस में बन जाएगी। बट रेटिक काउंट को आप ये नहीं कह सकते कि ये हेमोलिसिस की वजह से ज्यादा है या हीमोपाइसिस, न्यू हीमोपाइसिस की वजह से ज्यादा है। सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एसेज आप सीरम लेवल्स पे करवाते हो, दैट इज मोर स्पेसिफिक फॉर हीमोलिटिक एनीमियाज। अगर अगर आपने ये आयरन इंडियन ये कुछ ना दिया होता तो फिर रेटिक काउंट वुड बी सम इंफॉर्मेटिव। चलें, अब हम इसको ये तो इसके अलावा आपने और क्या करवाना है, कंसिडरिंग हर सिचुएशन, बिकॉज शी इज नॉट ओनली हैविंग एनीमिया, शी इज हैविंग अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। Yes, ma'am. I need her as her oral glucose tolerance test was not done. So at this gestation, it is not recommended. And but her 24-hour sugar profile was done, and her last 24-hour sugar profile was showing her blood sugar fasting was 79, and 1 hour post was 118. Pre-lunch was 84, and post-lunch was 104. Pre-dinner was 77 milligram, and post-dinner 83. And her HB glycosylated hemoglobin was also done, and that was 6 gram per deciliter, 6 gram percent. इसकी A1C की वैसे इसमें इंडिकेशन क्या थी जब इसके ब्लड शुगर लेवल जो है वो सिर्फ एक ही इसका रेज्ड आया और बाकी सब नॉर्मल आ गए?
Ma'am, normally it is not indicated here, but we can say that it can be used to explain the fetal prognosis. And also that in this condition, as it is not clearly demarcated that whether she's having diabetes or not, अच्छा, because her नहीं levels are इसमें देखो coming. अब आप ये कह सकते हो कि इसमें जाहिर है शुरू से इसका पॉलीहाइड्रामियोस वाला स्टेटस चल रहा है, अगरचे इस वक्त इसके ब्लड शुगर लेवल्स ठीक हैं, बट वी डोंट नो द ब्लड शुगर लेवल्स इन द प्रीवियस वीक्स, हमें नहीं पता। सो टू सम एक्सटेंट यू कैन जस्टिफाई बाय सेइंग कि इसका प्रीवियस कंट्रोल करने के लिए हम कम से कम ये टेस्ट करवा सकते हैं अलोंग विद ऑल अदर टेस्ट। लेकिन ओजीटीटी इस टाइम पे रिकमेंडेड नहीं है, वेरी नियर टू द टर्म। और इसके अलावा जो रूटीन की जो 24 आवर शुगर प्रोफाइल है दैट फेल्स टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, दैट बेसिकली इज ऑल विद इन द नॉर्मल लेवल। एंड नाउ HbA1c इज ऑन द अपर नॉर्मल लिमिट, ठीक है। तो ये Yes, जो है ma'am. वो 6 वाला जो है ये प्रीवियस अगर फर्ज किया ये स्पोरेडिक या इरेटिक ब्लड हाइपरग्लाइसीमिया भी है, तो भी उस सूरत में कभी कभार ये HbA1c रेज्ड हो सकता है, दो इट इज मोर कॉमनली रेज्ड विद द परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसलिए ये आपको किसी हद तक इंफॉर्मेशन ये दे देगा, ठीक है। चलो ये आपने करवा लिया, अब इसमें और कुछ करवाने की जरूरत है इस पेशेंट में ताकि हम फिर मैनेजमेंट पे चले। Ma'am, I need her ultrasound report, her dating scan, although it was not done, but I need her first ultrasound scan that was done in her 4th month of gestation. So, and how much Liker volume was given in that for correct estimation of her dates and also the amount of Liker. And when I screened her reports, and it was found to be 34 centimeter at that moment. And on the, I also 34 need her. centimeter, 34 centimeter was amount of Liker. Yes, ma'am. At how many weeks of gestation? 4th Yeah, month of months of gestation, the parameters were. No, ma'am. 4th month of gestation parameters were at 17 to 18 weeks of gestation at that moment. अच्छा, और क्योंकि 4 मंथ बाद दफा ये 16 वीक के साथ भी कोरिलेट करते हैं, वो सारे पेशेंट ने तो अपनी लैंग्वेज में बताना है। सो अगर Yes, ma'am. 17 वीक्स आ गए तो नॉट, क्योंकि देखो ये जो हम बात करते हैं ना कि 4 मंथ्स पे 17-18 वीक्स के पैरामीटर आ गए, डू यू थिंक मैक्रोसोमिया स्टार्ट्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? No, ma'am. इट No. डजंट स्टार्ट। तो ये Ma'am, वो actually patient, ज्यादा सिनेरियो yes. बनेगा, ये ज्यादा सिनेरियो फिर बनेगा अगर आप इस तरह की डिस्क्रिपेंसी उसको बता देते हैं और डिस्क्रिपेंसी की वजह आपसे पूछी जाती है, तो फिर तो उसमें ज्यादा मिस्टेकन डेट वाली बात बनेगी, नॉट ऑफ मैक्रोसोमिया ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। क्योंकि Yes, अल्ट्रासाउंड yes, पे अगर ये अल्ट्रासाउंड फीचर है ना, क्लिनिकली तो नहीं है, क्लिनिकली तो और भी रीजन हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड पे पैरामीटर आर 2 वीक्स अहेड ऑफ दैट फॉर दैट जेस्टेशनल टाइम पीरियड, तो ये फिर मिस्टेकन डेट्स वाली बात ज्यादा बनती है। No, ma'am. और अगर Actually, ये शायद मुझे थोड़ा सा explain करने में problem हुई है. Actually, because patient said me that it was done in the 4th month, so I related it with that. Actually, it was done at 17 to 18 weeks of gestation, so there was no तो वो फिर इसके discrepancy in साथ her growth. कोरिलेट कर रहे हैं ना, वो उसके साथ Yes, बहुत ज्यादा ma'am. कोई डिफरेंस नहीं है। Yes, ma'am. तो That was corresponding. अभी Yes, ma'am. करंटली अल्ट्रासाउंड इज नॉट अवेलेबल। Yes, ma'am, it's available. Her current ultrasound showing single elliptitis longitudinal breech presentation parameters were corresponding to 36 and 37 weeks of gestation, and Liker was 28 centimeter, and single deep pocket was more than 8.5 centimeter. So it And was her anomaly moderate scan was also polyhydramnios. normal. Yes, ma'am. ठीक है, Moderate. Yes, ma'am. मैंने It, कहा इसका मॉडरेट पॉलीहाइड्रामियोस है, नॉट वेरी मच एक्सेसिव, जो कि आपको क्लिनिकली भी मॉडरेट ही लगा, एक्सेसिव नहीं लगा। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस yes, केस। ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. First of all, I need the, as I already got her ultrasound report, but I need her missing investigation to complete the workup. And after that, I will counsel a patient regarding her diagnosis that she is having anemia, and most likely her cause of anemia is her iron deficiency. And with polyhydramnios, and currently she is having breech अभी presentation. तक इसको फिर हम आयरन डेफिशिएंसी में ही लेवल करेंगे, क्योंकि कोई और ना 26 पे कर दें, क्योंकि इसमें और कोई वजह हमें नहीं पता चलती कि इसमें और कोई वजह हो सकती है बाय ऑल द इन्वेस्टिगेशन। दो आफ्टर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन यू कैन नरेट सो मेनी कॉजेज, बट आफ्टर द कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन इसमें जो एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं
वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में ही आएगा किसी हद तक। तो अब इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ठीक है, आपने कंक्लूड कर लिया। अब इसमें आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी? शी इज एट 36 + 6 days, ऑलमोस्ट 37 वीक्स हो गए। Yes, ma'am. I will counsel a patient regarding her diagnosis, and I will explain that it is high risk pregnancy with multiple risk factors. I will keep my patient admitted and go by multidisciplinary team approach, involving a physician and myself as a gynecologist. My aim of management is to optimize her hemoglobin up to the safe level before her delivery, and to prolong her pregnancy as near as अब term as possible. सेफ लेवल को देखो, सेफ लेवल को स्पेसिफाई करना भी जरूरी होता है। आप कोई भी ऐसी वेग टर्मिनोलॉजी यूज ना करें कि जिसमें अगला सवाल एग्जामिनर आपसे पूछने पे मजबूर हो जाए। तो अगर आपका टारगेट है 11 ग्राम हीमोग्लोबिन तक, तो से इट। Yes, according to WHO. Yes, लेवल क्या है? my target level is 11 gram per deciliter in her third trimester. So I will prolong her pregnancy as near as term with vigilant fetal-maternal surveillance. Regarding her anemia, I will provide my patient dietary advice to take iron-rich diet, and I will deworm my patient if it's not done previously with tablet mebendazole. In 3 days in BD dose, and I will also, as her 1 RCS is already arranged and her hemoglobin is 9.5 gram per deciliter at this moment, and she's having risk factors, so at any moment she can. आप इसको डीवर्म करना चाहोगे अभी? Ma'am, if previously not done. अच्छा, आप अभी इसको करोगे? हाँ जी, बताइए। मैम at 9.5 gram per deciliter. देखो पता है क्या, बाज दफा आपसे जब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यस वी कैन डू इट, तो डोंट टेक अ पॉज। This shows your lack of confidence. This shows your lack of confidence. Yes, you can do it. ठीक है, तो इसको कॉन्फिडेंटली कहो, इसमें फिर हेजिटेट करने वाली क्या बात है? हेजिटेट ना करो। वहां से फिर लगता है कि शायद आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। So sometimes all of a sudden you are being asked a cross question. वो सिर्फ आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए भी होता है। इट डजंट ऑलवेज मीन्स कि आपने कोई गलत बात कर दी। ठीक है, ओके मैम। इफ यू थिंक कि हमें और कोई वजह नहीं मिली, और इसमें हमारी कंट्री में खास तौर पे जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पे पेशेंट स्पेशली पाइका के साथ की हिस्ट्री भी देती है, डेफिनेटली यू हैव टू डिवर्म द पेशेंट। तो से इट विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलें आगे चलें। Okay. And currently she's having 9.5 gram per deciliter hemoglobin, so I will transfuse her with 1 RCC that she's very near to term, and she's having risk factor like polyhydramnios. So at any moment she can land up in any emergency, so her hemoglobin should be built up till 11 gram per deciliter before that. And I will regarding her ठीक है, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, और मेरा अगला सवाल ये है कि now what is your plan of delivery in this case? What is your plan? At this gestation, as she's having breech presentation, so I will discuss with my patient regarding the options of external cephalic version and planned elective cesarean section. As she's multigravida and there is no absolute contraindication in her history and examination for external cephalic version, so I can offer her and I can tell her pros and cons associated with both procedures. That in multigravida there is chances of almost 60% chances of, in that case, in her case, there is 60% chance of successful ECV, and there's all but there's still 0.5% chance of emergency cesarean section with that, and 5% chances of spontaneous reversion after that. In case, and still there's 40% chances of failed external cephalic version, so in that case we will offer her elective cesarean section at 39 weeks of gestation. And I will also explain my patient regarding the certain complications regarding एक मिनट, ECV की जो आपने इसको ऑप्शन दी, जो देनी चाहिए भी, क्योंकि प्रीवियस एसवी हैं। अब ECV के साथ एक दूसरी चीज पॉलीहाइड्रामियोस की भी है, हाउ यू विल टैकल दैट, और ये कब करोगे आप ECV? Ma'am, actually ACV should ideally be done in primary gravida at 36, and in this case multigravida should be done at 37 weeks of gestation.
यस मैम 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे हम ECV ऑफर कर सकते हैं, करते हैं, बट द polyhydramnios is not any absolute contraindication for ECV, so we can perform her ECV in ultrasound guided. We can first of all we will rule out any contraindications, and as my patient is having no absolute contraindications, so I will fulfilling the prerequisites of ECV. I will the day of ECV I will do her op scan to reconfirm her live presentation and position of the placenta, and I will perform her CTG 30 minutes before that, and I can also give her injection Terbutaline 250 micrograms subcutaneous to for abdominal relaxation, and after full abdomen written is form. soft, if the uterus is not irritable, the abdomen is soft, then terbutaline देने का कोई है strict indication? No ma'am, it is in Should that it be cases when given patient is very, routinely or in some selected cases? no ma'am, no ma'am, when it's not routinely given. ठीक है. So after written informed consent, I will perform ECV in a facility where her need of emergency cesarean section and pediatrician and NSC facilities are also available. I will manipulate the breech out of the pelvis, and then constant sustained pressure I will rotate it into the cephalic presentation with under ultrasound guidance and with intermittent fetal heart rate monitoring. After once successful ECV is done, I will confirm it with ultrasound, and I will do her CTG to observe any signs of fetal distress, and I will keep her under observation for 6 to 8 hours to see if she develops any pain, ठीक leaking, है, or bleeding, चले, or वो any तो signs of एक fetal routine का compromise. सारा उसका But ठीक है, if she's routine का इसका हो गया. एक मिनट ना, अभी एक मिनट जरा हम रुकते हैं यहाँ पे. yes, अब एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन आपने इसको ऑफर की, which is indicated in this case. सवाल सिर्फ ये पैदा हुआ था कि इसमें क्या पॉलीहाइड्रोनियस के साथ हम इसी कर सकते हैं. Yes, we can do. Not absolutely contraindicated. और ये कोई ग्रॉस पॉलीहाइड्रोनियस नहीं है. This is mild to moderate polyhydramnios. और अगर इसमें अगर ज्यादा मसला हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये चांसेस हैं कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने हो सकता है, और इसमें बाकी जो चांसेस ऑफ रप्चर और हैं वो भी एज पर फॉर द नॉर्मल केस. और दूसरी चीज ये कि इसमें अगर ज्यादा मसला हो कि इसमें रिकरेंट वो दोबारा से ये फेल हो जाए, तो यू कैन डू सम एमनियोसेंटेसिस एंड देन यू कैन गो अहेड फॉर द ECV. देखो हमारा बहुत जो मेन जो होता है ना, नाउ डेज डूइंग सेक्शन इज अ वेरी सिंपल टास्क. हम हर चीज का हल जो है वो सेक्शन में तलाश करते हैं. बट इफ द पेशेंट कैन बी गिवन अ चांस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बाय व्हाटएवर रूट, बाय व्हाटएवर मेथड, तो व्हाई नॉट टू ट्राई इट. हमारे पास इस चीज की चॉइस है कि अगर ये पॉलीहाइड्रोनियस है, हम थोड़ा इसका फ्लूइड ड्रॉ करें और उसके बाद उसको करें. अब जो पेशेंट होते हैं स्टेबलाइजिंग इंडक्शन भी तो ऐसी केसेस में की जाती है, आप इसको इसी करें और साथ उसकी लेबर को इंड्यूस कर दें. So that is a workable solution in this case. Patient has given delivery to had 2 vaginal deliveries. तो इसमें हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते. So this should be offered as a first line choice. मतलब इसमें जो है अगर कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, लाइक नॉर्मल प्लेसेंटल लोकेशन है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो दैट इज अनदर थिंग. बट कंसिडरिंग हर सिनेरियो जिसमें ये सारा कुछ ठीक चल रहा है एज रिगार्ड टू द फीटल डेवलपमेंट, fetal weight according to gestational age is appropriate, except for the increased amount of liquor which is persistent right from the second trimester onward. तो इसमें हम दे सकते हैं क्योंकि उसकी वजह भी हमें नहीं अभी तक पता चली. तो इस वजह से जो है वो इसमें हम ये बिल्कुल ये सारा कुछ कर सकते हैं. जो बाकी सारी आपने चीजें बताई वो उसके SOPs हैं करने के कि हम कब करेंगे. तो इसको प्रेफरेबली चूंकि लाइकर कम नहीं हुआ, अब इसमें 37 वीक्स पे इसलिए किया जाता है यूजुअली एक जिसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइकर हो, कि इसके बाद ब्रीच फिट होना शुरू हो जाती है. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट. अमाउंट ऑफ लाइकर कम होना शुरू हो जाती है, तो अगेन डिफिकल्ट टू रेड अ बेबी. और इसके अलावा एक टर्म का फीचर है जिसमें अगर इमरजेंसी डेवलप हो जाए इन टर्म्स ऑफ फीटल डिस्ट्रेस या रेड गया, तो उस सूरत में भी हम इमरजेंसी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं. सो हम आयाट्रोजेनिक प्रीटर्म डिलीवरी नहीं कर रहे होते. लेकिन ये जो केस है जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट्स 5/5 पैपेबल और इसमें माइल्ड टू मॉडरेट पॉलीहाइड्रोनियस है, तो उसमें हम 38 वीक्स तक भी जा सकते हैं. व्हाई नॉट. तो इसमें देखो
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कभी भी, ये एक चीज याद रखें। द रूल्स कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टाइप। जैसा पेशेंट होता है उसके, इसलिए जब एग्जाम में डिस्कशन हो रही होती है तो वो उस पेशेंट के गिर्द घूम रही होती है, वो किताबी बातें नहीं हो रही होती। बट इफ यू आर आस्क्ड फॉर सम अदर, कोई जो जैसे कोई लेटेस्ट रिसर्च है, कुछ और चीजें, वो किताब की बात आ जाती है। लेकिन जो किताब की बात है उसको पेशेंट पे फिट करना सीखें, ठीक है। इसलिए कुछ गाइडलाइन तो बन जाती हैं बीइंग द स्टैंडर्ड, but we can change those according to the patient's profile. So always try to modify the treatment according to a particular patient type. ठीक है। अब हम इसमें, अब मेरा ये सवाल है कि जब हमने इसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट ये था कि इसकी हमने ECV की और उसके बाद इसको हमने नॉर्मल का ट्राई लिया, there and then by doing ECV at 38 completed weeks, which will not be a difficult task in presence of increased amount of liquor, तो उस सूरत में हम उसको साथ ही इंडक्शन भी कर सकते हैं। यही हमारा अमूमन एक यस मैम, ये मैं क्वेश्चन ही मेरा यही था, मतलब मैं ये भी पूछना अलावा चाह रही जो थी है, कि अगर जब हम हमारा इंडक्शन प्लान करें तो प्लान आप ये है कि यस हमने मैम इसको ECV कर दिया। हाँ जी, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब आपका प्लान ये है तो 9.5 हीमोग्लोबिन पे आप ब्लड क्यों लगाना चाहती हैं? ब्लड क्यों लगाएंगे in view of the complications associated and risk factors associated with blood transfusions? मैम You because have she to is at give a term very and strong indication for blood transfusion. yes ma'am, she's at term and she's having 9.5 hemoglobin and previously she was given IV हाँ जी। injectable irons, but the raise of hemoglobin was not very good with the injectable irons. तो So at this gestation she's having risk factors like polyhydramnios, so at any moment she can go into spontaneous labor or rupture of ठीक है। membranes and अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना, एक चीज, हाँ ठीक है, सना एक चीज करोगे, इसमें इसको मल्टीपल आयरन इन्फ्यूजन्स मिली। तो अब जो मल्टीपल आयरन इन्फ्यूजन बात ये है कि जब भी हम जो हीमोपाइसिस का प्रोसेस होता है उसमें एक आयरन इज डेफिनेटली एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन उसके साथ कुछ को फैक्टर्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, लाइक फॉलिक एसिड इज कंबाइंड इन एवरी आयरन टेबलेट। तो व्हाई डोंट वी गिव द फॉलिक एसिड टेबलेट व्हेनेवर वी इन्फ्यूज द आयरन, पैरेंटल आयरन? तो इसमें यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ इसके कि हमने इसको, क्योंकि उसके अगर ये फॉलिक एसिड इज बेसिकली नीडेड फॉर द न्यूक्लियर एंड फॉर DNA मैचुरेशन, तो उसके बगैर जो है ये मेगालोब्लास्ट की तरफ चला जाता है। अगर पेरिफेरल स्मेयर ने वो चीज शो नहीं की, बट वी बाय आवर नॉलेज नो दैट हीमोपाइसिस प्रोसेस नीड्स हीमोग्लोबिन एज वेल एज फॉलिक एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। और बाज़ दफा विटामिन B12 भी, और उमूमन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, बहुत रेयरली ये देखने में आती है। तो लेकिन ये कि फॉलिक एसिड तो हम रूटीन में दे रहे होते हैं। तो फॉलिक एसिड whenever we give infusion, IV iron yes ma'am infusions should be given as a part of it, और कम से कम ये 2-3 हफ्ते के लिए हमें ये फॉलिक एसिड जरूर दे देनी चाहिए जब भी हम आयरन इन्फ्यूजन का प्लान कर रहे होते हैं। तो yes अब ma'am हम आते हैं वापस उस सवाल की तरफ कि आपने 9.5 हीमोग्लोबिन पे उसको ब्लड क्यों लगाया? व्हाट आर द थ्रेट्स इन योर माइंड, या क्या मसले मसाइल हैं जो इस सेशन में हो सके हैं इफ यू प्लान फॉर डिलीवरी विद द हीमोग्लोबिन ऑफ 9.5? व्हाई डोंट यू अरेंज अ ब्लड एंड कीप द डोनर स्टैंड बाय, और जस्ट अरेंज द ब्लड एंड इन केस यू नीड इट यू कैन ट्रांसफ्यूज इट देयर एंड देन? अब ये ब्लड की जो अरेंजमेंट है दैट शुड बी एक कलेक्टिव प्रोसीजर के तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी जो हम क्रॉस मैचिंग और स्क्रीनिंग कराते हैं वो बाज़ दफ़ा उसमें मसले आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से प्री प्लान करके इसको हम क्रॉस मैचिंग और स्क्रीनिंग करके उसको ब्लड को स्टैंड बाय रखें तो व्हाई वी कैन नॉट गो फॉर इट? जी सना। Ma'am, at this gestation, when she's having 9.5 gram per deciliter hemoglobin and she's having polyhydramnios, so I suspect the risk of sudden abruption or sudden rupture of membranes with cord prolapse. So in any case, with the case of fetal compromise, she must be needing emergency lower segment C-section. So there's increased risk of PPH even due to over multigravid over PPH हो जाएगा, ब्लड तो आपका पहले से रेंज है PPH। और दूसरी बात ये कि PPH कितने को केसेस
में आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो प्लेसेंटल एब्रप्शन वाली आप बात कर रहे हो, ये प्लेसेंटल एब्रप्शन अमूमन उन केसेस में होने के चांसेस होते हैं व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्लूइड, ये सडन डीकम्प्रेशन बेसिकली होती है यूट्रस की एंड प्लेसेंटा स्टार्ट टू सेपरेट। अगर आप उस चीज को अवॉइड कर लेते हो तो कम से कम एब्रप्शन के आप चांसेस को मिनिमाइज कर लेते हो। मोर ओवर आप जो पीपीए जो है वो तो आप तकरीबन हर डिलीवरी एंटीसिपेशन उसकी होती है टू सम एक्सटेंट, लेकिन हर पेशेंट, इसमें एक एडिशनल फैक्टर है पॉलीहाइड्रोमियोस का, सिर्फ ये एक चीज एडिड है इसमें। तो इसमें एज्यूमिंग दैट रिस्क ऑफ पीपीएच, इज इट वाइज इवन देन कि इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करें? अभी पीपीएच की तो सारी प्रिपरेशन और वो सारी चीजें होती हैं, स्टिल द ब्लड अरेंज्ड ब्लड कैन हेल्प द प्रॉब्लम। आपने ब्लड स्टैंड बाय, आप yes, दो ब्लड ma'am. स्टैंड Ma'am, बाय we can also go by this way that we can. उसको लगा दें। Yes, ma'am. ठीक है। और इसके अलावा जो पीपीएच की जो मैनेजमेंट होती है, जाहिर है ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें सेक्शन करना पड़ जाएगा। एब्रप्शन हुआ, कोई फीटल डिस्ट्रेस हुआ, या कोई एज ब्रीच वो लेबर में चली गई, या कोई कॉर्ड प्रेलप्स हो गया, ये और सारी चीजें उसमें कुछ हो सकती हैं। तो एट द मोस्ट यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। इवन देन यू कैन गो Yes, ma'am. विद दिस मच लेवल। ठीक है। तो इस वजह से आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने से पहले 100 दफा सोचें कि क्या इसका कोई और तरीकाकार है इसको मैनेज करने का या नहीं। अलबत्ता ये पेशेंट अगर लो लाइन प्लेसेंटा के साथ होती, ये पेशेंट, इस पेशेंट को एक आध एपिसोड हो चुका होता एपीएच का, या फिर जिसमें ऑनगोइंग हेमरेज के चांसेस है, देन डेफिनेटली यू रेज द हीमोग्लोबिन टू 11 बिफोर डिलीवरी प्लान, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन बहुत एक्यूटली नीचे फॉल करेगी। तो इस वजह से इसमें आप ब्लड क्रॉस मैच अरेंज करके और उसको कर दो। अब इसमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली एग्जिस्ट, लेकिन अगर आप इस देखो, जो ब्लड आपने क्रॉस मैच करा लिया, स्क्रीन करा लिया, ग्रुपिंग करवा ली, और वो विद इन 10 मिनट्स अवेलेबल होता है, तो दैट इज इक्वल टू गिविंग प्री ऑपरेटिव ट्रांसफ्यूजन्स। उसमें कोई मसला नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको जो पूछा जा सकता है वो ये कि क्या इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन एक इलेक्टिव ट्रांसफ्यूजन जितनी सेफ होती है? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है। तो इमरजेंसी और इलेक्टिव ट्रांसफ्यूजन में डेफिनेटली थोड़े से सेफ्टी इश्यूज होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें इलेक्टिवली ट्रांसफ्यूज करो, उसके अपने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन और ये सब चीजें जो हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, चाहे आपने उसको कितना भी क्रॉस मैच किया हो, वो चाहे वो रेयर भी हो, लेकिन फिर भी ये रिस्क हैं। और दूसरी चीज ये कि जो इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन है, इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा बड़ा रिस्क ये होता है जब हम इमरजेंसी क्रॉस मैचिंग और स्क्रीनिंग कराते हैं, जो बाद आधे पौने घंटे में हो जाती है, बट इलेक्टिव जो स्क्रीनिंग क्रॉस मैचिंग है दैट टेक्स एटलीस्ट 2 आवर्स। तो वो अगर हमने ये बाईपास किया हुआ है स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी बिफोर प्लानिंग फॉर डिलीवरी और फॉर सेक्शन, तो सिर्फ ब्लड को ब्लड बैंक से वहां तक पहुंचाने की ही बात है। तो इसलिए जो है वो उसमें ऑलरेडी जो पेशेंट मतलब इसमें चाहे वो क्रोनिक एनीमिया का भी केस है, लेकिन फिर भी आप इसमें 9.5 पे सेफली यू कैन गो अहेड। अलबत्ता अगर ये 9 से नीचे होता तो डेफिनेटली फिर आपने इसको ब्लड लगा के जाना था, क्योंकि इसमें आप ये कह सकते हो कि ये चूंकि क्रोनिक एनीमिया है और इसके अलावा इसमें जो है वो रिपीटेड इन्फ्यूजन्स हैव फेल्ड टू रेज हर हीमोग्लोबिन। सो प्रोबेबली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसमें और आउटकम बेहतर हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। और इसमें इसके लेबर में जाने के चांसेस, जो कि आप किसी भी चीज पे फिट कर सकते हो, ये वाली चीजें कि आप ये पॉलीहाइड्रोमियोस है तो इसमें लेबर में जल्दी जा सकती है, उसमें रप्चर हो सकता है, इसमें कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है और ये सारी चीजें। लेकिन 9.5 पे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी। इसमें देखो कोई भी मैनेजमेंट हो ना, उसमें 2-3 ओपिनियन जरूर एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज ओपिनियन विच आई फील कि इसमें ज्यादा एक बेहतर और सेफ ऑप्शन है, बिकॉज हमारा जो थ्रेशोल्ड है ना फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फॉर सिजेरियन सेक्शन इज वेरी वेरी लो। तो इस वजह से हमें जो है वो थोड़ी सी हमें इनको रिव्यू करने की बड़ी स्ट्रांगली जरूरत है।
ठीक है, तो इसको आप इस तरह से करके जा सकते हो और इसी और नॉर्मल डिलीवरी के सारा करके फिर हो जाए तो फिर आप उसको जो है उस सेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केस एंड हो जाएगा। अब इसमें और क्या चीजें हैं which needs to be considered after the delivery इस सेशन में? मैम इन postnatal period? हाँ, postnatal period की हम बात कर रहे हैं। Yes, ma'am. I will vigilantly monitor the patient for risk of any PPH and wound care. I will advise about the wound care, breastfeeding, and rediscuss contraception, which I had already discussed at 37 weeks of gestation. And I will give my patient dietary advice after that and to take hematinics for 3 months and in the postnatal period. I can recheck her hemoglobin in the postnatal period, and if it is less than 10, then according to SOGP, I can transfuse her with the one injectable iron before going home, before discharge. And then I can So basically, basically the postnatal period will address the issues of contraception definitely, और क्योंकि ये पेशेंट क्रोनिक अनीमिया का केस है, एंड द एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया, उसके अलावा एवेल्युएशन ऑफ द नियोनेट एज वेल, क्योंकि जो बेबीज इस क्रोनिक स्टेटस ऑफ जो है ये अनीमिया वाले स्टेटस में जो डेवलप होते हैं, दीज हैव सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, तो इसलिए जो है वो इसको सारा इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। बॉडी वेट तो चलो इसका अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन ठीक ही है, अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वरना इसमें हो सकती है। एंड इवन इन क्रॉनिक केसेस ऑफ अनीमिया, मैटरनल अनीमिया, इसमें थोड़ा सा आईक्यू लेवल वो तो लेटर ऑन टाइम पीरियड में हमें पता चलता है, बट डिलेड माइलस्टोन्स एंड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। समटाइम्स यू डोंट गेट द टाइम टू address these issues in your exams due to shortage of the time, लेकिन इसको रैपिडली जब आप मतलब इसको कर रहे होते हो, फाइल अप कर रहे होते हो केस को, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन का एक टच जरूर दे दिया करें, वो 1 सेकंड लगता है उसको बताने में। और दूसरी चीज ये कि इसमें आफ्टर डिलीवरी जो है वो इसको हम अनीमिया के करेक्शन और उसको बहुत ज्यादा इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। पेशेंट इज ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सो मे नॉट बी दैट कंप्लाइंट टू कम बैक अगेन, तो इसलिए इसमें जो है वो अगर सारा आप ये एवेलुएट करके इसका अनीमिया और ये सारा कुछ, ये सीरम फेरिटिन अभी भी लो है, तो इसमें फिर आप इसको ऑनवर्ड क्या जो थेरेपी देनी है वो भी आप सारी इसको एजुकेट करके इसको घर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केस एंड हो जाता है। तो जी सना, कोई और इसके बारे में आपने क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड? मैम रीनल फंक्शन और लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे इसके? रीनल फंक्शन की आप बात कर रहे हो? यस मैम, क्रॉनिक अगर उसका कोई रीनल डिजीज है या लिवर फंक्शन मतलब डिस्टर्ब है तो वो भी तो कॉज करा सकते हैं। कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज की वजह से ऐसा ना हो, ऐसा ही है क्या? क्रॉनिक रीनल डिजीज में अमूमन आयरन डेफिशिएंसी अमूमन नहीं होती, इसमें ज्यादातर जो है वो एरिथ्रोपाइटिन डेफिशिएंसी की वजह से हीमोपायोसिस इज अफेक्टेड। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको लगता है कोई साइन सिम्टम्स उसके, तो या फिर कोई कंप्लीट यूरिन टेस्ट पे कोई प्रोटीन्स पॉजिटिव आ जाती हैं, तो देन यू कैन गो फॉर, और उसमें हमारा थोड़ा सा लो थ्रेशोल्ड फॉर रीनल फंक्शन हो जाएगा इसलिए। लेकिन अगर कोई भी और मार्कर नहीं है तो फिर सूरत में हमारा फिर रीनल फंक्शंस को जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। सो ओनली इन दैट केस जबकि पेशेंट में कोई सिम्टम्स हो, साइंस हो, या फिर उसमें अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे कोई ऐसा मार्कर हमें मिल जाए तो फिर उसमें आप जल्दी करवा सकते हो। इन केस इन यू आर मैडम, इस केस के अंदर अगर हमने इलेक्टिव सेक्शन को जस्टिफाई करना हो विद ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स एंड पेशेंट की विश, तो हम उसको किस तरह किसी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? How do we say it? देखो उसमें भी डेफिनेटली उसमें भी यू कैन गो बोथ वेज। ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि इलेक्टिव सेक्शन इसमें मैं इसलिए करूंगा कि ब्रीच है, और दूसरी चीज ये कि ब्रीच के साथ इट इज एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रेमनियोस, सो इट इज लिंक्ड विद द हाई फेलियर रेट ऑफ ईसीबी।
And moreover, ECV in the presence of polyhydramnios can have more complication as compared to that with the normal amniotic fluid, जैसे placental abruption, because ECV can be linked with rupture of membrane, and if the rupture of membrane occur in presence of excessive liquor, it lead to gush of the amniotic fluid, excessive fluid discharge. तो उसमें sudden decompression होने की वजह से placental abruption होने के chances होते हैं. तो इस वजह से इसमें जो ज्यादा सेफ ऑप्शन है दैट वुड बी डूइंग इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन. तो यू कैन गो बोथ वेज. अगर वही बात है ना, और जिसने नॉर्मल डिलीवरी करनी होगी, ईसीवी करनी होगी, वो उसकी प्रीवियस एसवीडीज और बाय डूइंग प्री ईसीवी एमनियोसेंटेसिस करके जा सकता है. तो ये सारा, और उसके साथ ही जैसे ही ईसीवी आप करें उसके साथ ही आप इंडक्शन स्टार्ट कर दें, तो उसको उस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है. तो सेक्शन को भी आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं. थैंक यू मैडम. और एक ये बात पूछनी थी कि इन आर, हाँ जी, एवरीवन इज नॉट दैट कॉम्पिटेंट इन डूइंग ईसीवी. तो ये उसमें आप एक पर्सनल स्किल्स के लेवल पे भी बात कर सकते हो कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट टू डू ईसीवी, सो आई वुड रादर प्रेफर टू गो फॉर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इन दैट केस. And madam, in this case, during our history taking portion, first 30 minutes, हमने ये मैनेजमेंट की दोनों ऑप्शंस जो हैं वो पेशेंट से भी डिस्कस करनी है. बिल्कुल पूछ सकती हो. पेशेंट की विशेष इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन हर द ऑप्शंस फॉर वेजाइनल डिलीवरी. देखो, ब्रीच जब आती है ना तो उसकी सिर्फ 3 ही ऑप्शन होती हैं. या तो आप ईसीवी करके उसको करेक्ट करें, या एज ब्रीच उसको डिलीवर कर लें, या उसका सेक्शन कर दें. तो आउट ऑफ 3 ऑप्शंस, व्हिच वन इज द सेफेस्ट ऑप्शन इन फॉर आवर कम्युनिटी? हमारी जो कम्युनिटी के हिसाब से है वो सेफ ऑप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द वेस्ट, क्योंकि हमारे हिसाब से जो नॉर्मल डिलीवरी है वो सेफेस्ट ऑप्शन है फॉर आवर पॉपुलेशन, rather than doing cesarean section and then having all the consequences of those cesarean section. तो इस वजह से अब जो बाहर जो स्टडी की जाती है या जो उनके गाइडलाइन के हिसाब से पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज मार्केडली रिड्यूस्ड बाय डूइंग इलेक्टिव सेक्शन. But what about the overall perinatal mortality due to other causes in our country which can contribute more significantly to it, rather than the perinatal mortality rate associated with breech delivery itself? वो तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है उसका, क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन तो होती ही 3% में है एट टर्म. तो वो तो सिर्फ एक थोड़े से केसेस में वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. All other causes are unrelated and still the baby can have that perinatal mortality due to other causes. जिन कंट्रीज में बाकी कॉजेस को कंट्रोल कर लिया गया है वहां पे ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी रिस्क ड्यू टू ब्रीच डिलीवरी वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसलिए वो उसका सेक्शन करते हैं, प्रेफर करते हैं. लेकिन हमारी कंट्री में, हमारी पोस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास में जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनमें तो ज्यादा बेहतर यही है कि हम इनको डिलीवरी करें नॉर्मली. ठीक है मैम, हम इसे वजाइनली डिलीवर नहीं कर सकते. थर्ड ग्रेविडा है, वजाइनल ब्रीच डिलीवरी कुड बी एन ऑप्शन और नॉट, एज शी इज थर्ड ग्रेविडा. अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो अगेन देखो, जो परसिस्टेंट ब्रीच होती है ना प्राइमरी ग्रेविडास में, अमूमन उसमें यूट्राइन कुछ शेप का भी प्रॉब्लम होता है और यूट्रस अडैप्ट्स इटसेल्फ टू दैट पोजीशन. उसमें जरा होता मुश्किल ये करना. बट स्टिल इफ यू थिंक कि उसमें लाइकर भी ठीक है, फीटल है भी एंगेज नहीं है, सॉरी फीटल ब्रीथ भी एंगेज नहीं है, तो उसमें कर सकते हो. दैट बेसिकली इज नॉट अगेन अ हार्ड एंड फास्ट रूल. ऐसा नहीं है कि प्राइमरी को हर हाल में हम सेक्शन ही करें या प्राइमरी में हम ईसीवी भी ऑफर कर सकते हैं. मैम, इसमें हम वजाइनल ब्रीच कर सकते हैं, इसमें हम वजाइनल ब्रीच डिलीवरी करवा सकते हैं. वजाइनल ब्रीच उसका ठीक है, वेजाइनल ब्रीच भी जो है वो सिलेक्टेड केसेस में किया जाता है, उसका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसको हम हर पेशेंट पे नहीं कर रहे होते, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया. ठीक है, इफ द पेशेंट फिट्स इनटू दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी योर एक्सपर्टीज एंड स्किल्स. क्योंकि अगर आप की स्किल उस काबिल है, समटाइम्स एट सम सेटअप्स यू मे बी ऑल अलोन टू डील विद दीज केसेस. तो अगर आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझते हैं कि ब्रीच डिलीवरी कर सकें आसानी से, तो जरूर करें. अगर पेशेंट फर्ज किया आपके पास फीटल मॉनिटरिंग के भी एडिक्वेट वो हैं, एक इमरजेंसी सेक्शन की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और इससे ज्यादा बढ़ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप उसको करने के लिए स्किल्ड हैं.
तो फिर आप इसको जरूर करें। और अगर पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल भी करता हो तो ये नहीं है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई चीज और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि वो अगर सारे फुलफिल होते हैं तो फिर आप उसको कर सकते हो, उसमें कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मैम एक सवाल करना था आपसे कि जी मैम एक सवाल हाँ जी। करना था, जो एसओजीपी की गाइडलाइन है उसमें ये है कि हमने जब फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी की है, क्योंकि मेरा एग्जाम में यही केस आया था, सारे इंडाइसेस नॉर्मल थे और फेरेटिन उसका 100 दिया था, तो इसमें क्या हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कराएंगे? बिल्कुल क्योंकि करवा एसओजीपी सकते में तो हैं। एक मिनट बेटा, मैं जरा उसकी सिर्फ क्या एक मिनट जरा कॉल अटेंड कर लूं। जी 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 मैम इस हाँ जी, पेशेंट में तो आप मैम पूछ रहे थे। हाँ जी डॉक्टर जी SOGP डॉक्टर की तो गाइडलाइन को आप कुछ बता रहे थे, वो जरा दोबारा से बोलिए। जी डॉक्टर, उसमें ये था कि जिस तरह आज का केस था तो उसमें मुझे कोई नहीं मिल रहा था, ना थैलेसीमिया का कोई फीचर था, ना आयरन डेफिशिएंसी का कोई आ रहा था पेशेंट में, और उसमें फेरेटिन मुझे एग्जामिनर ने 100 दिया था और सारे इंडाइसेस उसके नॉर्मल थे, प्राइमरी ग्रेविटा थी। अब वो उसमें ये था कि लाइक सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर अभी जो एसओजीपी गाइडलाइन में मैंने देखा तो इट्स अ फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन मांगना है, तो मैम इसका क्या सिर्फ ये जस्टिफिकेशन? हाँ, ये बिल्कुल एक डिफरेंट कंपोनेंट है उसका, कि जहां पे भी, क्योंकि जहां पे आप सीरम आयरन लेवल, फेरिटिन लेवल्स आर हाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ऑल अदर पैरामीटर्स, लैब पैरामीटर्स, यानी आपको लग रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बट सीरम फेरिटिन फेल्स टू शो दैट आयरन डेफिशिएंसी, तो ये एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है आयरन जो होता है, सीरम आयरन। The serum iron levels and serum ferritin levels are markedly increased in cases of acute inflammation and infection. Just जी डॉक्टर, तो डॉक्टर उसमें मुझे सी रिएक्टिव प्रोटीन का बोलना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि हम डिफरेंशिएट कोरोना करेंगे। वायरस की हम बात अगर करें, वो तो बिल्कुल शॉर्ट सूरत में यस, अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन के रेट हैं, आपकी कोई कंक्लूजन उसे नहीं बन रही, तो देन डेफिनेटली बिफोर कमेंटिंग ऑन दो सीरम फेरिटिन लेवल जो शुड आस्क फॉर सी रिएक्टिव। और डॉक्टर कितना होना, कोई कहते हैं 300 होना चाहिए, तो सी, क्योंकि देखो सी रिएक्टिव प्रोटीन शोज जी क्या चीज डॉक्टर फेरेटिन लेवल जो है, वैसे जो बताइए दोबारा। जी एसओजीपी कहता है कि फेरेटिन लेवल 30 से जो है 100 तक नॉर्मल है, तो कोई कहते हैं कि नहीं 300 से अबव है तो इंक्रीज करना चाहिए, तो डॉक्टर एग्जैक्ट क्या है वैल्यू इसकी? ये 300 से ऊपर ही है, ये 300 से ऊपर हो तो वो रेज्ड ही होता है, लेकिन अगर ये 30 से ऊपर है तो बेसिकली वो डेफिशिएंसी को रूल आउट कर देता है। तो इसकी रेंज इतनी वाइड है कि 30 से ये 300 तक चला जाता है, लेकिन अगर ये 30 से ऊपर हो तो ये डेफिशिएंसी को रूल आउट कर देता है। इसका मतलब है कि डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक एनीमिक पेशेंट में चाहे सीरम फेरिटिन इतने ज्यादा रेज्ड होते भी नहीं है, अनलेस दिस इज रेज्ड ड्यू टू अदर प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। बाज दफा इवन ए सिंपल डेंटल केरीज कैन रेज सीरम फेरिटिन लेवल। सिंपल इन्फेक्शन जिनको हम शायद इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे होते, एक्यूट इन्फेक्शन की तो बात और है ना, वो तो थाउजेंड्स में भी चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको 300 नॉर्मल लेवल करें भी, ऊपर वाले लेवल, लेकिन यूजुअली इन द केसेस ऑफ अनीमिया के केसेस में ये अगर 30 से ऊपर भी हैं तो ये मार्केटली रेज्ड नहीं होते, यानी ये तो अपर लिमिट है ना ऊपर की, लेकिन अपर लिमिट तक जाना भी इन एन अदर वे इज एबनॉर्मल
कि फिर उसमें हमें इन्फेक्शंस को रूल आउट करना पड़ता है बाय डूइंग सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, एंड दिस शुड बी डन, दिस शुड बी आस्क्ड फॉर व्हेन द सीरम फेरिटिन लेवल्स आर रेज्ड। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम एक क्वेश्चन मैम फिर इस पेशेंट में, मैम आपने इस पेशेंट में लेबल किया क्रॉनिक एनीमिया है इस पेशेंट को ना, आपने अभी डिस्कशन क्रॉनिक में आयरन बोला था। डेफिशिएंसी एनीमिया है जिसमें बजाहर तो कोई ऐसी सिर्फ मेल न्यूट्रिशन, पाइका, ये सारी चीजें हैं जो हमें अभी सामने नजर आई हैं। तो ये इसकी अपेरेंटली रीजन है, क्योंकि बाकी हमें टेस्ट अब लैब एरर हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता, बट लैब इन्वेस्टिगेशन मतलब मैम क्रॉनिक क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आप कह रही हैं, मतलब मैं समझ रही थी कि क्रॉनिक कोई जो लेवल हम जिस तरह क्रॉनिक एनीमिया, अच्छा वो नहीं, ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम इस पेशेंट के जिस तरह ये एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल आया है, तो सिकल सेल के लिए दूसरा टेस्ट भी तो है, रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एचबी तो इतना लो नहीं है, वो भी 9 है और एक सीरम फेरेटिन भी 29 यानी बॉर्डर लाइन पे है। इसमें हीमोग्लोबिन 6 तक भी रहा और उस 6 के टाइम पे भी इसको और कोई सिम्टम नहीं थे एक्सेप्ट फॉर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो जो सिकल सेल डिजीज होती है उसमें अगर हीमोग्लोबिन 6 हो जाए तो उसके साथ डेफिनेटली उसके अपने स्पेसिफिक जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं। जी मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने कल एक पेशेंट देखी थी, पेशेंट वाज 30 इयर्स ऑफ एज और ग्रेविडा 5 पैरा 4 थी, प्रीवियस एक अर्ली न्यूनेटेड डेथ थी और 9 उसकी ना 3 अलाइव बेबीज थे। पेशेंट वाज बिटवीन मतलब 31-32 वीक्स की गेस्टेशनल हाइट थी उसकी और उसकी फंडल हाइट थी 23 सेंटीमीटर की, IU4 बेबी था। और मैम पेशेंट ना इस प्रेगनेंसी में मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा मतलब शी वाज वेरी पेल, मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ है, तो उसने कहा कि नहीं मेरा खून की कमी बताई है, लेकिन मुझे ना मल्टीपल टाइम्स वाइट सेल लगे हैं, वो जो वाइट सेल की कमी बताई है। तो मैम मुझे एक तो मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाई कि वो वाइट सेल को प्लाज्मा के साथ रिलेट कर रही है या हीमोग्लोबिन के साथ। फिर वो मुझे पहले तो सिर्फ ये पता होना चाहिए ना कि वाइट सेल उसको लगे हैं तो क्यों लगे हैं। अमूमन एफएफपी लगाने की कोई वजह तो नहीं होती प्रेगनेंसी में। तो दूसरी बात प्लेटलेट्स, अच्छा प्लेटलेट्स लगे हैं तो फिर तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में अमूमन इस लेवल तक थ्रोम्बोसाइट्स ड्रॉप नहीं करते, तो इसमें वी हैव टू रूल आउट सम अदर कॉजेस लाइक ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है। ठीक है, तो उसमें फिर हमें वो तो फिर पूरा सिनेरियो सामने हो तो फिर उसके हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसमें उसका जाहिर है उसके हिसाब से फिर सारा वर्कअप होगा। तो ये तो अगर मल्टीपल टाइम उसको प्लेटलेट्स लगे, उसे बेसलाइन प्लेटलेट्स कितने थे, डिक्रीज उसकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिक्रीज इस रेट पे हुआ, व्हाट अदर ट्रीटमेंट शी हैज गॉन फॉर। और जाहिर है अगर ये ऑटोइम्यून हो उसमें स्टीरॉइड पे पेशेंट को डालना पड़ता है, वरना रिपीटेडली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको होता रहेगा और थ्रोम्बोसाइट्स की तो लाइफ ही बहुत कम होती है। इसलिए जिनमें इडियोपैथिक भी हो एंड इफ द थ्रोम्बोसाइट्स आर बिलो 100 तो उस सूरत में उनको, अगर वो बहुत क्रिटिकल लेवल पे नहीं है तो उस सूरत में फिर हम इसको प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन देते हैं जस्ट आवर्स बिफोर द डिलीवरी टाइम, क्योंकि इनके बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अनलेस के कोई ब्लीडिंग एपिसोड हो इन बिटवीन प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, किसी भी एंटीनेटल टाइम पीरियड पे कोई ब्लीडिंग एपिसोड हो जाए तो उस सूरत में एज एन इमरजेंसी मैनेजमेंट और वो इंटरवल थेरेपी के तौर पे देना पड़े तो वो एक और बात है। मैम उसकी ना वो बात ठीक है मैम, मतलब हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को जैसे मतलब क्लासिफाई करके हम कहते हैं कि अगर 50 से कम हो तो 36 वीक्स पे हमने लगा देने उसको प्लेटलेट, या इवन मतलब पेशेंट 20 पे से कम बेसिकली 100 और 50 के दरमियान में आप सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करते हो और 50 से नीचे आप उसमें इसलिए कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, एब्रप्शन के चांसेस हो जाते हैं, तो 50 से नीचे आप लगा देते हो और 50 और 100 के दरमियान में आप उसको ऑब्जर्व करते हो, दैट इज सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट ओनली, और 100 से ऊपर आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है मैम, और उसका जब मैंने मैम उसकी जब मैंने वो देखी सीबीसी की पिक्चर देखी तो मैम उसके ऊपर WBCs भी 6 थे और उसके प्लेटलेट भी 87 थे और उसकी हीमोग्लोबिन भी 8.6 थी। मींस कि ये तो पैनसाइटोपिनिया का बोन मैरो सप्रेशन वाली पिक्चर लगती है कि जिसमें सारी सेल लाइंस आर अफेक्टेड, क्योंकि अगर सारे सेल अफेक्टेड हों,
अगर सारे के सारे सेल अफेक्टेड हों, क्योंकि WBC's काउंट जस्ट 6, अब प्रेगनेंसी में तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, इट कैन गो राइट अप टू 17,000, तो 6 का होना तो कम ही है। हीमोग्लोबिन दो नॉट दैट लो, लेकिन हीमोग्लोबिन भी तो कम है और प्लेटलेट भी कम, तो इसमें हमें थोड़ा सा पार्शियल बोन मैरो सप्रेशन की तरफ जाना चाहिए कि कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसा ड्रग इनटेक जिससे बोन मैरो सप्रेशन हो रही हो, तो वो भी हमें फिर अपनी डिस्कशन में लानी पड़ेगी। जी मैम, पेशेंट की ना कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं थी, कोई हाइपरटेंशन और IUGR का भी मुझे मतलब इसके अलावा कोई कॉज नहीं मिल रहा था। और दूसरा मैम, जो पेशेंट थी ना वो 7 मंथ 28 वीक्स में ना कह रही थी कि मुझे लेग स्वेलिंग हुई थी और उसको टेट स्टॉकिंग दी हुई थी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मरीज को मैनेज कैसे करूंगी, क्योंकि अगर पैनसाइटोपिनिया तो मैंने उसको कैसे लेकर चलना, और अगर उसको DVT हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसका डॉपलर भी फैल था, तो फिर मैं उसको कैसे आगे लेकर चलूंगी। देखो, डीवीटी तो अपने पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ डीवीटी के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू विद थ्रोम्बोसाइटोसिस। एक मिनट जरा, मैं फोन कॉल बेटा सुन लूं। जी अच्छा, तो डीवीटी की हम बात कर रहे थे कि डीवीटी के चांसेस ज्यादा होते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस में, जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मोर देन 45, तो उस सूरत में उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर ये प्लेटलेट्स कम हैं तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज ज्यादा होती हैं। तो इसलिए डीवीटी को उसके अपने पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि ये जो लेग स्वेलिंग इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू डीवीटी। The leg swelling can be due to in severe anemia भी, hypoproteinemia के साथ ही, it can be physiological in 80% of the pregnancies। और इस तरह से ये जो पहले जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कॉजेज होती हैं वो आपने पहले देखनी होती हैं, अदरवाइज जो है वो आप इसको इस सिनेरियो के साथ लिंक नहीं कर सकते डायरेक्टली। चलें जी, अब हम इसको स्टॉप फिर हम मैं मल्टीप्लिसिटी टीम के साथ इसको लेकर चलूंगी और एज क्लोज टू कम एज पॉसिबल और डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, फिजिशियन को इन्वॉल्व करेंगे और साथ ही नियोनेटोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें IUGR भी है स्वेयर। ठीक है, तो चलें अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. जज़ाकल्लाह मैम।